What is demographic dividend? Okay, the population of working age is more than the dependent population. Okay, simple it is, right? Acha, what is demographic transition theory, Rana? What is demographic transition theory? Have you revised or not? No? थ्योरी कल कराया था, परसों कराया था ना? क्या था उसमें? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. What it is? नहीं? What? I have dictated you also stages wise, right? Subbu? हाँ, it is a different demography, है ना? क्या है first stage में? What it is? Okay. Death rate declines and the birth rate is still high. ये इमेज याद नहीं आता जब मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोलती हूँ तो वर्ड दिमाग में आना चाहिए. व्हाट शुड कम इन योर माइंड? दिस ग्राफ शुड कम टू योर माइंड. जो लिखवाया एटलीस्ट वो रिवाइज करके आया करो. उतना एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हो ना दिन में, जो टॉपिक हुआ 1-2 घंटे जो आप पढ़ते हो उसको आधे घंटे में रिवाइज कर लिया करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको इसके बारे में लिखवाया भी है, बताया भी था कि एटलीस्ट जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आई है इसके बारे में, स्टेजेस के बारे में, तो आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था इससे रिलेटेड. व्हाट क्वेश्चन भी आया था, राइट? है कि नहीं? आप भूल गए डेमोग्राफिक. फिर व्हाट वाज डेमोग्राफिक? नेक्स्ट व्हाट वी स्टडी अबाउट द पिरामिड्स. व्हाट इट इज, प्रज्ञा? ओके, परसेंटेज ऑफ no, how much percentage of population is living in which category of ठीक है, that is called age structure, that is represented with age pyramids. Okay, they show the representation of males and females in different age categories. Okay, 0 to 10, 10 to 20, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो. 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, मतलब बिलो 14 years, 15 to 59 and plus 60 years. ठीक है, ब्रॉडली दीज आर द कैटेगरीज. अगर ज़्यादा इन डेप्थ में दिखाना है टू शो हाउ इट इज गोइंग, देन different 10 to 12, 10 to 15 like that you can show. Okay, this is called age pyramid, right? Next what we studied about demographic dividend. Then we looked at the least and most census. हमने थोड़ा सा स्टडी किया था कि सेंसस में क्या है, where is the maximum population, which states have maximum population. Okay, so have you revised or not? Raunak, ये बताओ मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स कौन से हैं? 3 इंडिया के 3 मोस्ट पॉपुलर स्टेट. सीक्वेंस में बताओ मोस्ट पॉपुलर. डेंसिटी नहीं पूछा मैंने, आई आस्क्ड यू अबाउट नंबर ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी में डिफरेंस देख, नोट्स देखने की जरूरत नहीं है. ओके, ठीक है, मैंने ये सामने आपको दिखाया भी था. मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट पॉपुलर. ओके, नेम लीस्ट पॉपुलर स्टेट्स. If I'm just asking state, so why you are saying union territory? I'm just asking you states, least popular states. Samne, you look here. What you can see? Okay. Chalo, this was the how density is distributed of India, regional distribution. Now the major belt of population, where it is concentrated in the North India, right? This we did yesterday, right? सबसे ज़्यादा major chunk of our population is where located? Most popular state UP, West Bengal, बिहार, ये northern part वाला. तो सबसे ज़्यादा populated north में ये वाला belt हो गया. Second belt जो most populated that is this. So can you see the regional variation in the population? ठीक है, where there is a maximum of population is located and where least populous state कहाँ पे? जहाँ पे life थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे least populous है, like Himalayan trains and all this area. Getting the difference? This is called regional variation in the population. Understood the line? Regional variation, region wise difference है population में. यहाँ पे density अलग है, यहाँ पे density अलग है, यहाँ पे density अलग है. ठीक है? This you remember or not? Yesterday we did. Okay. चलो एक नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. और हमने देखा था व्हाट इज द कॉम्पोजिशन. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में 4 चीजें हमने देखी थी. निशा, व्हाट आर दोस? वी स्टडीड अबाउट
population composition? If you had to study the population of any area, population, how we will study? What factors that we study? Population composition. Which was the first one? Sex composition. That is rural and ठीक है. What is the specific point with respect to rural urban? Any point, Sobo? Rural urban composition. What is the criteria? What is the general tendency with respect to developed and developing countries? Okay. In developed nations. ठीक है best. ठीक है. And then developing, what is the tendency? It's vice versa. Okay. What was the fourth composition? Occupational. Okay. Ronak, what is the specific criteria with respect to this occupational structure? Developed or developing में? ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कुछ बात कही थी मैंने. क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है डेवलपिंग नेशंस में और डेवलप्ड नेशंस में? व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर हैविंग, पीपल ऑफ दैट नेशन आर हैविंग? बताओ, सोच के बताओ क्या. नेम व्हाट इट इज. Where in developing nations more are employed in the agriculture, primary sector में है कि नहीं. इंडिया में 50 to 55% पॉपुलेशन अभी कहाँ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है. रेस्ट इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स. दिस इज राइट आउटराइटली रिवर्स ऑफ डेवलप्ड नेशन. देयर लेस पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन agriculture primary sector, more is employed into the secondary and the tertiary sector. So this is how you understand about the population of any area based on these four composition. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे? अच्छा, ये एक और चीज है, डिकेडल ग्रोथ रेट. व्हाट इज द ग्रोथ इज हैपनिंग इन इंडिया? व्हाट हैज, राइट डाउन द हेडिंग, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और यू कैन राइट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. एट व्हाट रेट वी स्टडीड अबाउट द पॉपुलेशन ना, कि एट व्हाट रेट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. What had been the growth of population in India? If you look at decade wise, ठीक है, हेडिंग लिख ली. चलो एक बार यहाँ देखो, यहाँ देखो. इनिशियली 1901 1911, what was this natural increase? How much it was happening per thousand? That is 6.6. ठीक है. उस टाइम क्या, stagnant population, high birth rate and high death rate. ठीक है. Now let's look at this 1941 1951 era when we got independence. What was the rate of growth? 12.5 and 18.9. ठीक है. Rate of natural increase. Natural increase means what? Natural increase means what? Nisha? सिंपल. इट वॉज हाउ मच देयर हैज बीन इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे 18.9. दिस इज एन एवरेज वैल्यू. ठीक है. पर 1000 के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं. ठीक है. अब फिर 1961 71 22.1. दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर परसेंटेज में भी देखोगे तो ये इतना परसेंट ही आप ग्रोथ की मान सकते हो कि इस एरिया में 1971-81 में कितना ग्रोथ हुआ? 22.2% के आसपास या 21% हमारा ग्रोथ रेट रहा. ठीक है. अब देखो उसके बाद डिक्लाइन कहाँ से होने लगा? यहाँ पे 22 है अप्रोक्सीमेटली 19. उसके बाद से हम यहाँ देखो 17 14. कैन यू सी द डाउनफॉल? 1991 2001, देन 2001 to 2011 इट इज डिक्रीजिंग. जो नेचुरल इंक्रीज है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. इस लाइन, इस टेबल से ये समझ में आ रहा है? अब देखो क्रूड डेथ रेट क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है. People are dying less because of better health facilities, immunization, ठीक है, sanitation, hygiene and all. ठीक है. better planning, health planning हो रही है ना अच्छे से. अब देखते हैं कि बुढ़े ज्यादा दिन तक अब रहते हैं. पहले क्या होता था, काफी एपिडेमिक्स वगैरह आती थी, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, छोटी सी निमोनिया हुआ बच्चे मर जाते थे, या बूढ़े को छोटी सी एलर्जी या लंग इन्फेक्शन हुआ वो उनकी डेथ हो जाती थी. बट नाउ वी हैव डेवलप्ड साइंटिफिकली आल्सो एंड टेक्नोलॉजिकली आल्सो, दैट हैज कॉज्ड रिडक्शन इन दी डेथ रेट. सिमिलरली मोर इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैव हैपेंड. ठीक है. कंट्रोल्ड बर्थ होता है, रेगुलेटेड
बेटर फैमिली प्लानिंग होती है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग दिस पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो कितने होते थे 41, 41, 45, 46, पहले बहुत ज्यादा बर्थ रेट होता था, अब क्या रिड्यूस होके क्या हो गया अभी 21। इज इट ओके? इज द डेटा क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में आप लिखो, ठीक है। The population growth rate in India over the last century has been caused by the population growth rate in India over the last century has been caused by the annual birth rate comma death rate and migration rate, and thereby shows different trends full stop. There are four distinct phases of growth identified within this period. द लास्ट सेंचुरी मतलब हम कहाँ से कंसिडर करें, 1901 से 2000 तक का हम कंसिडर करें, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। हाउ द ग्रोथ हैज हैपेंड इन आवर कंट्री, ठीक है। फेज 1, इसको 1 ऐसे भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी, फेज 2, फेज 1, फेज 2। This flowchart will show how the population has been in the last previous decade. इसको हम क्या कहते हैं, इस era को हम what we refer to as it as stagnant population. Here the population was stagnant population. It was neither increasing nor decreasing. Okay, stagnant or stationary you can say. This you write steady population, steady जो कहते हैं ना, this 1951 to 81, this is called the era of population explosion. If you look at the graph, अगर ये देखो 1951 to 81 का टाइम देखो,
कैन यू सी 1951 to 81 बर्थ रेट हाई रहा है, ठीक है, डेथ रेट स्टैग्नेंटली रिड्यूस हुआ है कॉन्स्टेंटली, और एवरेज क्या हुआ है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज हैपेंड. सो दिस एरा 1951 to 1981 हैज बीन रिफर्ड टू एज द एरा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, लास्ट वन इट इज राइट डाउन हाई with definite signs of high growth with definite high growth has been happening, population अभी increase हो रही है, एकदम reduce नहीं हो रही, but there has been signs of slowdown, the population is reducing. ठीक है, अब इसके बारे में आपको फेज 1 इसके बारे में एक लाइन में बताऊं. ये ऐसे बना लिया आपने चार्ट, ये कैसे रहेगा, आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा. दिस एरा इज स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, दिस एरा इज स्टेडी पॉपुलेशन, देन वी हैड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन व्हिच टाइम पीरियड 1951 to 81. This chart will help you in memorization and this will show how in the past century how the population has evolved in India. ठीक है, so write down first phase 1 1901 to 1921. The population growth rate was very low. The population growth rate was very low, comma, even negative during 1911 to 1921. Even negative during 1911 to 1921. Full stop. Next line. Both the birth rate and death rate were high. Both death rate and birth rate were high, keeping the rate of increase low, comma, keeping the rate of increase low. Next point you write, what was the cause of this? Poor health, right? Poor health and medical services, comma, illiteracy of people at large, and inefficient distribution system of food and other basic necessities. Basic necessities were largely responsible. Inefficient distribution system of food and other basic necessities were largely responsible for high birth and death rates. Understood the reason why it is called steady population, or you can say stagnant or stationary population? Reasons are also in front of you, okay? Because there are poor health sanitation and health facilities, no proper food, और उस टाइम क्या था? Their Britishers were ruling India. Many famines came in India also, है ना? Proper channelization नहीं था. Input और output कहते हैं ना, front end और back end mechanism जो काम करता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या किसी भी रिसोर्स को प्रोड्यूसर तक पहुंचाने के लिए या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो that was not efficient during the British time. It was only fulfilled जिसको जरूरत रिच पीपल थे उन तक की बेसिक नेसेसिटीज पहुंचती थी. ठीक है, राइट डाउन सेकेंड फेज 2 1921 to 51. Steady population growth, and overall improvement in health, and sanitation,
throughout the country brought down the mortality rate. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, जब गांधी जी आए थे 20s 30s में, ही वॉज वोकल फॉर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस एंड ऑल. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 20s और 30s के टाइम में. इवन गांधी जी वाइफ शी ऑल्सो टॉक टू वुमेन्स, है ना, कैंपेन वगैरह कहती थी कि क्लीनलीनेस रखो, है ना. सो ये आपने हिस्ट्री में पॉइंट भी देखा होगा. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में जागरूकता फैली. पीपल गॉट अवेयर अबाउट सैनिटेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज. ओके, दैट लेड टू ब्रॉट डाउन दी मोर्टेलिटी रेट. कुछ हद तक, जैसे पहले होता है कि बच्चे 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा मरते थे, there were more fertility rates, है ना. So because of this basic hygiene that they were maintaining, they started to maintain. That happened, that led to reduction in the mortality rate. ठीक है, next line you write, at the same time better transport, at the same time, next line write, at the same time, comma, better transport and communication system, at the same time better transport and communication system improved distribution systems, improved the distribution system. CBR, crude birth rate remained high in this. CBR, crude birth rate remained high in this period, leading to higher growth rate in this phase. Leading to high growth rate, leading to a higher growth rate than in the previous phase. मतलब previous year के कंपेरिजन में यहाँ पे better growth थी population की. Higher growth rate than in the previous phase. Third one, phase 3, 1951 to 1981, population explosion. Point you write, caused by a rapid fall, caused by a rapid fall, caused by a rapid fall in the mortality rate, but a high fertility rate, but a high fertility rate of the population, caused by a rapid fall in the mortality rate, but a high fertility rate of the population, but a high fertility rate of the population in the country. Next line, the average annual growth rate was, average annual growth rate was as high as 2.2%. एवरेज एनुअल, सालाना कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी? 2.2. किस डिकेड में बात करें? 15 to 80 वाले टाइम पीरियड में. ठीक है, इसके अलावा और पॉपुलेशन कैसे हुआ यहाँ पे? इस टाइम पे आप देखोगे काफी माइग्रेशन भी इंडिया में हुए हैं. अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के अगर आप देखोगे, इस टाइम में क्या हो रहा था? रिफ्यूजीज आए थे इंडिया में, अंडरस्टूड, द तिब्बतियन और नॉट, नेपालीज आए थे, पाकिस्तान से रिफ्यूजीज का सीन चल रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो मच केओस वाज देयर और नॉट इन इंडिया. ठीक है, केओस हो रहा था. पाकिस्तानी, नेपाल से, बांग्लादेश से, फिर तिब्बत से काफी लोग आ गए थे, रिफ्यूजीज आए थे. बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन. ठीक है, एक और लाइन, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज during this period, developmental activities led to the improvement of living conditions of people. ठीक है, one more line you can write, besides, comma, besides increase international migration,
Besides, increased international migration, increased international migration, okay, not internal, it is international migration from Tibet, Bangladesh, Nepal. Tibet, Bangladesh, Nepal and Pakistan contributed to the high growth rate. Now last phase, phase 4. Write down high growth rate with definite signs of slowdown. High growth with definite signs of slowdown. Definite signs of slowdown. Post 1981, the growth rate, though it remained high, has started slowing down gradually. Next point, a downward trend in the crude birth rate. Crude birth क्या है? फॉल हो रही है. Downward trend in the CBR. Okay, this was in turn, write down line, this was in turn affected by an increase in the affected by an increase in the mean age at marriage. मीन एज, जो एवरेज एज होता है, मीन एज, MEE. अब इस फेज में आप इस टाइम क्या देख रहे हो? मीन एज मतलब एवरेज एज. Affected by an increase in the mean age at marriage and improved quality of life. अब क्या है, लोग पहले क्या था 16-20 के बीच में शादी जाती थी, पहले तो 15 के प्लस. Now what is happening? 20-25 till 30-35 also people are reluctant to get married. Okay, increase in the mean age at marriage and improved quality of life. Improved quality of life, particularly the education of females, in the country has caused this downward trend. अब देखो, suppose women gets married at 15, okay, average duration till what it can reproduce or have child is around 40 हम कंसिडर करते हैं, ओनली 40 तक, है ना, बेस्ट मतलब फेज. अब यू आर गेटिंग ए मैरिड एट 30, अगर 30 के आसपास अगर हम मैरिज हो रहा है, अब क्या हो रहा है? द मैरिज एज इज गेटिंग इंक्रीज, एवरेज एज इज गेटिंग इंक्रीज और नॉट. अब 15 पे ना मैरिज करके लोग क्या कर रहे हैं? 30 प्लस सोच रहे हैं कि 30 प्लस पहले हम कैरियर बना लें, एजुकेशन बन लें, स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद शादी करें. तो कितना गैप है यहाँ पे? फर्टिलिटी रेट का, रिप्रोडक्शन का कितना टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पे? देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्रीड हैविंग मोर चाइल्ड और नॉट. यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना ईयर्स मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखो कितना है, यहाँ से मान लो 40, मतलब बेस्ट पॉसिबल एज टिल 35 ओनली, बट वी आर कंसीडरिंग द एक्सट्रीम लिमिट टिल 40. तो यहाँ पे आप सिर्फ कितना है, 10 ईयर्स मिल रहे हैं, और वहाँ पे कितना टाइम मिल रहा है रिप्रोडक्शन का, मतलब टू हैव योर चाइल्ड, है ना, अप्रोक्सीमेटली 25 years. So people were producing more during this phase earlier, but now the health conditions are also restraining. ये भी एक साइड इफेक्ट दिख रहा है कि as you grow older it is very difficult to reproduce also. ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना भी दिक्कत होता है. ड्यूरिंग द लेट मैरिज पीपल आर फेसिंग, मेट्रो सिटीज या रूरल और अर्बन हर सिचुएशन में, ये सिनेरियो में समझा रहा है. आप देखोगे मेडिकल कंडीशन आप पढ़ोगे, दिस इज अ मेजर कंसर्न ऑफ द यूथ नाउ. जो लेट मैरिज हो रहे हैं उसमें इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव ऑल्सो. तो फर्टिलिटी रेट क्या है यहाँ पे? रिड्यूस. फर्टिलिटी टाइम पीरियड, जो आप देखो टाइम पीरियड जो मिल रहा है वो कम हो गया.
फिर वीमेंस आर नॉट सो मच हेल्दी ऑल्सो, है ना, मैनी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि पीसीओएस वीमेंस में क्या, लेट मैरिजेस में क्या होता है, पीसीओडी की जो दिक्कत होती है, लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे कि वेरी मेनी वुमेन्स इन द मेट्रो सिटी स्पेशली दे आर हैविंग दिस लाइफस्टाइल डिजीज, जिसके पीसीओएस करके प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्ट होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या फर्टिलिटी रेट हमारी रिड्यूस होती जा रही है। तो टाइम पीरियड कम हो गया, फिर फर्टिलिटी रेट भी रिड्यूस हो रहा है, वुमेन्स इतनी हेल्दी नहीं है, फूड न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, कितना केमिकल वगैरह हम खाते रहते हैं, तो हमें भी पता है कि हाउ मच वी आर व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। सो उसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन भी डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। तो अब जो आ रहा है इट इज शोइंग दिस ट्रेंड। अब क्या ट्रेंड हो रहा है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का, नेगेटिव, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना, प्रोबेबल मैनी रीजंस, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को ये चीज, ठीक है। और क्या क्या रीजन हो सकता है पॉपुलेशन डाउनफॉल का, ये पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, इवन मेल्स आर नॉट, मेल पॉपुलेशन भी नॉट रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि हम पहले स्टैब्लिश हो जाएं, 30-35 तो आराम से नॉर्मल किसी की भी एज पहुंच जाती है, स्टैब्लिश होते होते बेटर पोजीशन पे आते हैं। सो एवरीबडी इज नाउ इन बेटर कैरियर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहता है, सो दैट इज लीडिंग टू लेट मैरिजेस, ठीक है। लेट मैरिजेस होंगे तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, लेट होगा। अब जापान का केस देख लो, देयर पीपल डोंट वांट टू हैव किड्स ओनली, वो इतने वर्कहोलिक हो गए कि दे डोंट, गवर्नमेंट उनको क्या कहते हैं, पैकेजेस देती है कि आप जाओ घूम के आओ, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग देम, हाँ गवर्नमेंट इज गिविंग देम पैकेजेस और स्पॉन्सर करती है कि आप जाओ थोड़ा सा रिलैक्स एंड लो, बट पीपल आर सो मच वर्कहोलिक दे डोंट वांट टू टेक हॉलीडेज आल्सो, ठीक है, इतना काम करते हैं वहाँ पे जापानीज। मतलब ये आप केस स्टडी आप देखना, कहीं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, ऐसी न्यूज़ में आती हैं बातें कि उतना लोग काम करना चाहते हैं, वो छुट्टी नहीं लेना चाहते, कहते कि नहीं हमें काम करना है, करियर बनाना है, या फिर अलग माइंड सेट है वहाँ पे लोगों का, बिल्कुल, ठीक है। और धीरे धीरे वी आर डेवलपिंग नेशंस आर ऑल्सो ऑन दैट पाथ, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया पॉपुलेशन के बारे में, समझ गए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने ये क्यों किया, इतना क्यों पढ़ा, समझा, बिकॉज यूपीएससी पूछता है ना, सिंपल सी बात है, बिना वजह तो हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अननेसेसरी चीज तो हम पढ़ेंगे। और मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक, सोसाइटी, विमेन, चाइल्ड, हमेशा एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लो, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, या फिर कहीं भी आप पूछो, आपसे नॉर्मल क्वेरीज में भी वो क्वेश्चन 1-to-1 पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है, बताओ, 2002 का है, पुराना है थोड़ा सा, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग, अच्छा यहाँ पे तो आंसर मैंने लिख दिया, चलो ये तो सिंपल है, मतलब मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया आपको कि ऐसे क्वेश्चन जो 2000 के टाइम पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं एक बार दे दूंगी आपको कल परसों में, बहुत सारे क्वेश्चन सेंसस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप पुराना डेटा नहीं याद करना, क्वेश्चन देख लेना कि कैसा पूछा गया है ना, रिसेंट डेटा से उसको सेंसस से आपको एक्यूमुलेट करना, ठीक है। सो व्हाट विल बी पीरियड ऑफ 1909-1921 इज व्हाट, एका 3, it is stagnant growth, 1921 to 51 what is steady growth, ठीक है। 1951-81 it is rapid growth, ठीक है। 1801 to 2000 it is high growth with definite signs of slow down, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? So are you getting what we are studying, what we studied, what we are studying this phases of how population has increased in India, what has been the trend of Indian population growth, ठीक है। it has increased, now it is on the path। अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे इंक्रीज हुआ, क्या डाउनफॉल की तरफ जा रहा है कुछ हद तक। सबसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ये टाइम हो जाएगा 1951 to 81 वाला, 1981 से सबसे टॉप पे जाएगा वो, मतलब ये, मतलब हाँ, मतलब ये इंक्रीज, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे दूं कि वो तो हाँ ट्रांजिशन थ्योरी वाला ही सेम हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि पहले पॉपुलेशन कम थी, बट उसके कंपैरिजन में अभी क्या पॉपुलेशन ज्यादा है कि नहीं, तो ये पॉइंट हमेशा ये वाला ऊपर जाएगा कि नहीं, इससे कंपैरेटिवली दैट आई शोड कि पहले कम था